सो हमने इंडक्टर और रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया। किरचॉफ्स लूप इक्वेशन क्या बनेगी अगर सोर्स ऑफ ईएमएफ ई है तो? किरचॉफ्स लूप इक्वेशन विल बी E minus L di by dt is equals to IR. किसके across EMF is minus L di by dt. So Kirchhoff's loop equation almost similar derivation है जैसे कल की थी। So जब हम कनेक्ट करेंगे इंडक्टर में ग्रोथ ऑफ करंट इट विल बी स्लो। ग्रोथ ऑफ करंट थ्रू इंडक्टर, एकदम से करंट क्यों नहीं बढ़ सकती इंडक्टर में? फ्लक्स चेंज होगा उसकी वजह से इंड्यूस फ्लक्स चेंज हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी जो ग्रोथ को अपोज कर रही है माइनस एल डी बाई dt. So current will slowly increase in the inductive circuit, and when it reaches its maximum value I naught, so di by dt will be zero because जब करंट मैक्सिमम हो जाएगी तो उसके डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगी। तो कल हमने किया था चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, टुडे इट विल बी ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट, कि growth of current in inductor and decay of current in inductor when L and R are in series. So you can write in LR circuit, inductor and resistor. In LR circuit, inductor and resistor are connected in series. Inductor and resistor are connected in series with an AC source of EMF. With an AC source of EMF using two-way tap key. Using two-way tap key. Because inductor opposes any change in current. Therefore, growth and decay of current will not take place instantly. Growth and decay of current will not take place instantly in an LR circuit. Growth and decay will not take place instantly in an LR circuit. So first is growth of current. Growth and decay of current will not take place instantly. So first is growth of current in LR circuit. If we press the key K1, source of EMF is in the circuit. Source of EMF E is in the circuit. As current begins to grow, induced EMF, as current begins to grow, induced EMF in the circuit is minus L di by dt, and the Kirchhoff's loop equation is given by when current increases to its maximum value. I is equals to I naught, di by dt is equals to 0, implies E is equals to I naught R.
Substitute 2 in 1. इंटीग्रेट करें तो इनिशियली करंट कितनी है, t is equals to 0 पे. 0. So current increases from 0 to I. As time changes from 0 to t. di upon I minus I naught. Integration will be And then I minus I naught by minus I. लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या आएगा? log I minus I naught upon, या एक स्टेप और लिख सकते हो बीच में लिखना हो तो. फर्दर सॉल्व करो, देखो क्या आता है रिजल्ट. फिर एक बार ऊपर कर दो. सॉल्व करो, क्या आएगा रिजल्ट इसका. एंटी लॉग लेंगे तो यू गेट, आपको ना ये रिजल्ट याद रखना है सिर्फ, मतलब डोंट बॉदर मच अबाउट डेरिवेशन, ये रिजल्ट रट्टा मार दो बस. Equation for growth of current in LR circuit. अब इसको कल वाले मेथड से भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो. कल हमने लिमिट्स नहीं ली थी, कल हमने बाउंड्री कंडीशंस ली थी. मगर उससे भी अगर इसको करूंगा तो बाउंड्री कंडीशंस के साथ तो सेम ही रिजल्ट आएगा. विल फर्स्ट राइट दैट आई नॉट सॉरी dt आई नॉट माइनस आर, सॉरी गलत लिख दिया. इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल बी minus log I by N naught R by L into
t plus constant of integration, and then at t is equals to 0, I is equals to 0 means C1 is equals to minus log I naught. इसको substitute कर दो 4 and 3. And then you will get taking anti-log, you will get the same result. And अगर हम डिके ऑफ करंट पढ़ना है तो K1 की जगह K2 को प्रेस करेंगे. K2 को प्रेस करेंगे तो सोर्स ऑफ ईएमएफ रिमूव कर दिया. सोर्स ऑफ ईएमएफ रिमूव कर दिया तो किरचॉफ्स लूप इक्वेशन क्या बनेगी? अगर सोर्स ऑफ ईएमएफ रिमूव कर दिया K2 को प्रेस करके, किरचॉफ्स लूप इक्वेशन विल बी E 0 पुट कर देंगे. E को 0 पुट करेंगे तो LDI by dt plus IR is equals to 0. So next is decay of current. इसमें वैसे वो भी लिख लो, टाइम कांस्टेंट. टाइम कांस्टेंट होता है L by R. Minus. So you can write that. Time constant for LR circuit. Time constant for LR circuit can be defined as time constant for LR circuit can be defined as time during which current increases to time during which current rises to 63.2% of its maximum value. 63.2% of its maximum value. (63.2% of its maximum value). Next is decay of current. Decay of current. Once the current increases to maximum value,
Once the current increases to its maximum value, we remove source of EMF. Once current increases to its maximum value, we remove the source of EMF from the circuit. We remove source of EMF from the circuit. Thus, we remove source of EMF from the circuit. Thus, the Kirchhoff's loop equation. Thus, the Kirchhoff's loop equation for the circuit. Kirchhoff's loop equation for the circuit is Kirchhoff's loop equation for the circuit is E को 0 कर देंगे. अब करंट का चेंज क्या है? एज टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 to t, करंट चेंजेस फ्रॉम I naught to I. I naught to I. So you get log I by I naught. Same way में time constant. हाँ, जो पहले ग्राफ बनाया उसी के ऊपर ही बना लेना ये भी. सेपरेट मत बनाना, उसी के ऊपर बनाना पहले ग्राफ के. सर टाइम कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस क्या है वैसे? कुछ नहीं है इसकी, मतलब मैथमेटिकली है. इट्स नॉट फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. बेसिकली डिटरमिन करता है कि किस रेट से करंट बढ़ेगी या कम होगी. अदरवाइज एज सच फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा नहीं है कुछ.
Second, next, right. इसके आगे लिख लो पहले. Thus time constant during decay. Thus time constant during decay can be defined as time constant during decay can be defined as time during which current decays to 36.8% 36.8% of its maximum value. Current decays to 36.8% of its maximum value. Next is energy stored in inductor. ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, डेरिवेशन भी और जो रिजल्ट आएगा वो भी. एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर. हमने कैपेसिटेंस में एनर्जी स्टोर्ड कैसे ड्राइव की थी? जो हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला ड्राइव किया था. कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कहाँ होती है? एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ Electric field of capacitor. Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. बिकॉज कैपेसिटर प्लेट्स के बाहर तो हम फील्ड को सीधो लेते हैं, चाहे स्फेरिकल कैपेसिटर है, चाहे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ले रहे हैं, चाहे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं. तो we say energy is stored in the electric field between the plates of capacitor. तो अगर मैं distance between the plates of capacitor change करता हूँ, will it change the energy? Yes, sir. With battery connected, energy बढ़ेगी या कम हो जाएगी? With battery connected, if I increase the distance between plates of capacitor, battery कम हो connected जाएगी, कम हो constant क्या जाएगी. रहेगा? तो कम हो जाएगी. Voltage same रहेगी. Voltage same रहेगी. What about electric field? Electric field same रहेगा या बदल जाएगा? Electric field between plates of capacitor. Formula क्या था electric field between plates of capacitor का? Sigma by epsilon naught. सिग्मा बाय एप्सिलॉन. सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. डी पर डिपेंड नहीं करता. तो मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा या कम? वी शुड बी कांस्टेंट. पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या होता है कैपेसिटर प्लेट्स के लिए? V is equal to ED, EL. इज इक्वल टू ईडी. डी बढ़ा रहा हूं, वी कांस्टेंट है, तो ई कम होगा. ई कम हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कम हो गया. उसको आप दूसरे वे में भी देख सकते थे. ई इज इक्वल टू वी बाई डी. वी कांस्टेंट है, डी कम हो रहा है, डी बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा. एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था कैपेसिटर प्लेट्स के लिए? हाफ एप्सिलॉन. Epsilon naught E square. हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. तो ई कम हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एनर्जी डेंसिटी कम हो रही है. Yes. sir. एनर्जी डेंसिटी कम हो रही है. व्हाट अबाउट एनर्जी? बढ़ रही है. कैसे पता? मान लो मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? Half. Half. हाफ. एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 1 by 4 times. 1/4. 1/4. वॉल्यूम कितना बड़ा? 2 times. तो एनर्जी बढ़ी या कम हुई? वॉल्यूम डबल हुआ, एनर्जी डेंसिटी 1/4 हो गई. Half हो गई. Half हो गई. हाफ हो गई. इसको आप किसी वे में भी देखो. मान लो मैं ऐसे एनर्जी डेंसिटी से निकालने की जगह सीधा हाफ CV स्क्वायर से निकालता हूँ बिकॉज वी कांस्टेंट है. कैपेसिटर प्लेट्स में डिस्टेंस बढ़ाया तो C की वैल्यू कम हो गई. कम हो गई. कम हो कम गई. हो जाएगी और वी कांस्टेंट है तो एनर्जी तो कम ही हो रही है ना. बस
सिमिलरली अगर मैं डिस्टेंस को कम करता तो एनर्जी बढ़ जाती. ये बैटरी कनेक्टेड के साथ है, बिकॉज बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो कंसेप्ट उल्टा हो जाएगा. फॉर्मूला विल बी Q²/2C. हमने जो डेरिवेशन की थी एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हमने बेसिकली वर्क डन निकाला था, वर्क डन टू चार्ज द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. और जो वर्क डन आया था हमने कहा दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी स्टोर्ड बिकॉज जब हम चार्ज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा. एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड व्हाटएवर वर्क यू डू टू चार्ज द कैपेसिटर दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. इंडक्टर में मैंने उसको एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया. एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया, जैसे ही कनेक्ट करूंगा करंट बढ़ना शुरू होगी. अब करंट अपने आप नहीं बढ़ सकती बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज opposing the growth of current. Induced EMF is opposing the growth of current. तो किसी इंस्टेंट पे अगर मैं बोलूं induced EMF है से मान लो E1, तो work done to transfer charge dq across that inductor is. किसी इंस्टेंट पे अगर induced EMF E1 है तो work done to transfer, मतलब potential difference E1 है. Potential E1 difference dq. work done to move unit positive charge. even into the तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए वर्क डन E1 है, तो अगर मैंने चार्ज dq ट्रांसफर करना है वर्क डन विल बी E1 DQ. E1 dq. और E1 हमें पता है LdI/dt, और dq को मैं लिख सकता हूँ Idt. सो बेसिकली इसमें हम कहेंगे उसमें हमने चार्ज बढ़ाने के लिए जो वर्क डन किया था या कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो वर्क डन किया था दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसमें work done to increase the current in the inductor that will be stored in the form of energy, and that energy is stored in the magnetic field. बिकॉज जब करंट जीरो थी तो इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो था, करंट बढ़ी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ा. सो एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज जनरेटेड ड्यू टू दैट इंडक्टर. तो हमने वो वर्क डन निकालना है, जो भी वर्क डन आएगा वी से दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर. सो यू कैन राइट द कंसेप्ट फर्स्ट. एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर. Energy stored in an inductor. Energy stored in an inductor. Whenever an inductor is connected with whenever an inductor is connected with AC source of EMF, whenever an inductor is connected with AC source of EMF, the growth of current is not instant as induced EMF. As induced ग्रोथ EMF ऑफ करंट की बात क्या बोला था? is ग्रोथ ऑफ not- करंट growth of current is not instant. Therefore, some work is done. Some work is done in moving charge across.
Some work is done in moving charge across the inductor. Mathematically. If change in current in the coil is di by dt, induced EMF will have magnitude L di by dt. सर इन कॉइलेज के बाद क्या बोला था? चेंज इन द करंट इन कॉइलेज di by dt. Induced EMF is L di by dt. Also, we can say dq is equals to idt. So work done is half L I naught square and यही एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी. यहाँ तक लिख लिया तो इसके आगे लिखो. कर लिया नोट ये? एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. से इंडक्टर वैसे यूज का करते हैं प्रैक्टिकली, मतलब कौन से आपको बताया तो था जैसे LCR सर्किट बनता है, ट्यूनिंग सर्किट होते हैं. आपके जो ट्यूबलाइट की चोक कॉइल है दैट इज इंडक्टर. चोक कॉइल पता है क्या होती है? नो सर. चोक कॉइल ट्यूबलाइट में आजकल इलेक्ट्रॉनिक चोक लगी होगी आपके, बट अगर आपने पुरानी ट्यूबलाइट देखी है, जैसे 2-3 साल पुरानी भी, तो ट्यूबलाइट में दो, एक तो ट्यूबलाइट होती है, एक सेंटर में आपने देखा होगा से क्यूबिकल सा बॉक्स सा लगा होता है, Yes, sir. और एक सिलेंडर लगा होता है. सिलेंडर इज अ स्टार्टर कॉइल, और जो बीच में क्यूबिकल लगा है दैट इज चोक कॉइल, दैट इज प्योर इंडक्टर. बेसिकली इसको हम लेते हैं, इट्स यूज्ड टू कंट्रोल करंट विदाउट कंज्यूमिंग मच पावर. करंट को बढ़ाना कम करना इसका काम होता है विदाउट कंज्यूमिंग मच पावर. सो जब हम पावर इन एन एसी सर्किट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आइडियल चोक हो तो पावर क्यों नहीं कंज्यूम करती. ओके सर. बट घर में आपको सबसे कॉमन यूज वही दिखेगा, चोक कॉइल का, ट्यूबलाइट में लगी होती है. सो कैन नेक्स्ट इसके आगे लिख लो पहले.
this implies that energy is stored. This implies that energy is stored. This implies that the work which is done. This implies that work which is done to increase the current. Work which is done to increase the current in inductor. In inductor will be stored in the form of energy in inductor. The energy is in inductor. The energy is stored in magnetic field generated by the coil. Energy is stored in magnetic field generated by the coil. Energy is stored in magnetic field generated by the coil. Energy is stored in magnetic field generated by the coil. अच्छा, इसमें अगर मैं बोलूं आपको एनर्जी डेंसिटी निकालो तो निकाल सकते हो? एनर्जी तो हाफ एल आई नॉट स्क्वायर आ गई. इफ यू हैव टू फाइंड एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे? एनर्जी डेंसिटी निकालने का मेथड क्या रहेगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है, तो इसमें कैसे निकलेगी? divided by AL. डिवाइडेड बाय AL, area of cross कैसे section निकलेगी? into length. मतलब जैसे हमने निकाली थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड जो होती है दैट इज बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, मतलब इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू नॉट. इसको प्रूव करके देखना, नोट में लिख लो, बिकॉज ये फॉर्मूला यूज होगा ऐसा जिसका प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, बट स्टिल यू कैन ट्राई. As in electrostatic, energy density is, as in electrostatic, the energy density is half epsilon naught e square, half epsilon naught e square. Similarly, in magnetic field, the energy density is given by, similarly in magnetic field the energy density is given by b square by 2 mu naught.
b square by 2 mu naught. अब बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट अगर हम लेते हैं तो बी कैसे निकालोगे? इंडक्टर के लिए बी क्या था? म्यू नॉट एन आई। तो आपको कोरिलेट करना है किसी तरह से ताकि आ जाए। सो एनीवेज, बट हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एलसी सर्किट। एलसी सर्किट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मॉडर्न फिजिक्स। एलसी सर्किट में होता है, अभी तक हमने जो पढ़ा है दैट इज एलआरबी सीरीज में लगाए थे और आरसीबी सीरीज में लगाया था। मेरे को बताओ, अगर हम एल और सी को पैरेलल में लगा दें तो क्या होगा? मैं इंडक्टर और कैपेसिटर को अगर पैरेलल में लगाता हूं तो मैंने यहाँ पे एक एसी सोर्स लिया, दो कीज लगाई, पहले मैंने K1 को बंद कर दिया। इफ आई क्लोज द की K1 तो इट विल अफेक्ट द, और ये ओपन है, K1 को क्लोज कर दिया, K2 ओपन है, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा सोर्स ऑफ ईएमएफ के कारण। कैपेसिटर गेट्स चार्ज टू अ सर्टेन वैल्यू से मान लेते हैं इसकी कैपेसिटर को मैंने चार्ज कर दिया, चाहे यहाँ पे डीसी सोर्स लगा के किया तो भी चल जाएगा। बेसिकली हमने कैपेसिटर को चार्ज करके ये वाला पार्ट सर्किट से रिमूव कर दिया। अब वंस कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड, इसको रिमूव कर दिया और इसे क्लोज कर दिया। हाउ विल इट अफेक्ट? कैपेसिटर अपना चार्ज स्टोर करके रख सकता है या डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा? डिस्चार्ज होना शुरू। इसकी अगर मैं प्लेट्स की बात करूं, ए पे हायर पोटेंशियल है, बी पे लोअर पोटेंशियल है, तो चार्ज ऐसे फ्लो करना शुरू कर देगा। हायर से लोअर पोटेंशियल ऐसे बीच में से तो नहीं जा सकता बिकॉज बीच में डाइलेक्ट्रिक है। सो हम लेंगे कि चार्ज फ्लो करना शुरू। अब चार्ज फ्लो करेगा तो इसमें करंट आ रही है। अगर इंडक्टर में करंट फ्लो करेगी तो एकदम से सारा चार्ज तो जा नहीं सकता बिकॉज इंडक्टर विल अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। इंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। धीरे धीरे चार्ज जो है इस प्लेट से नीचे ट्रांसफर होना शुरू हो गया। अभी जब मैंने सर्किट स्विच ऑन किया था, हम कह रहे थे इसमें एनर्जी स्टोर्ड है t इक्वल्स टू 0 पे। कैपेसिटर फुली चार्ज है, इंडक्टर में कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। फिर धीरे धीरे एक स्टेज आई जब इस पे चार्ज थोड़ा सा कम हो गया और इंडक्टर में कुछ करंट फ्लो कर रही है। एक स्टेज आई जब ये कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया, मतलब ये सारा पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? अभी ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था। अगर ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया तो एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में कितनी होगी? फिर 0। 0। और इंडक्टर में करंट मैक्सिमम होगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये दोनों इक्वल होंगे कि इनिशियली जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर थी वो इंडक्टर में होगी। अब इंडक्टर में करंट फ्लो क्यों कर रही थी? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 हो गया इन दोनों एंड्स के क्रॉस, ए और बी के क्रॉस। जब पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के क्रॉस 0 हो गया तो करंट फ्लो करती रहेगी अभी भी? नो सर। नहीं, करंट कम होनी चाहिए, पर इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो करंट को कम भी नहीं होने देगा एकदम से। ऐसा तो है नहीं कि आई नॉट से एकदम से 0 हो जाएगी, बिकॉज इंडक्टर में ग्रोथ को अपोज करना है तो डिके ऑफ करंट को भी अपोज करना है। तो करंट इसमें धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। अब करंट फ्लो इसी डायरेक्शन में कर रही है पर धीरे धीरे कम हो रही है, तो एट एनी इंस्टेंट भी से इसमें करंट कम हो गई। अब जब करंट फ्लो करती जा रही है
नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव होगी या ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव? नीचे पॉजिटिव ऊपर अब नेगेटिव। नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव होगी और ऊपर वाली नेगेटिव होनी शुरू होगी, बिकॉज इंडक्टर में से करंट धीरे धीरे कम हो रही थी, पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है, ऊपर नेगेटिव हो गया, नीचे पॉजिटिव हो गया। ऑपोजिट डायरेक्शन में पहले था कि ये अपर पॉजिटिव लोअर नेगेटिव, अब अपर नेगेटिव लोअर पॉजिटिव। जब करंट जीरो हो जाएगी तो कैपेसिटर उल्टा चार्ज हो जाएगा। जितनी देर में करंट जीरो होगी कैपेसिटर ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो गया। अब इसके बाद अब नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव, ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पहले करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, अब करंट ऐसे फ्लो करने लग जाएगा। यस ऑसिलेशंस किसकी हैं? हम इसको बोलते हैं एलसी ऑसिलेटर। करंट की। एनर्जी इज ऑसिलेटिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, जब इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो वो ऑसिलेशन सेटअप हो जाएंगी। और इस ऑसिलेटर का हम यूज करते हैं एज अ फीडबैक ऑसिलेटर नॉर्मली सर्किट में। फीडबैक ऑसिलेटर हम किस चीज को बोलते हैं फिजिक्स में? जनरल ऑसिलेटर अगर हम बोले तो ऑसिलेटर इलेक्ट्रिसिटी में किसको बोला जाता है? दो टर्म्स यूज होती हैं। रेक्टिफायर होता है जो एसी को डीसी में चेंज कर देता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट में। ऑसिलेटर होता है जो डीसी को एसी में चेंज कर देता है। अब ऑसिलेशंस में होता है कि जैसे यही लो मैंने कि अगर इसको डीसी से चार्ज किया था तो अल्टीमेटली करंट कांस्टेंट नहीं फ्लो कर रही है, इंडक्टर में वेरिएबल फ्लो कर रही है। जब ऑसिलेशन सेटअप होती हैं तो ऐसे हो सकता है कि सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक में चली गई, फिर सारी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल में आ गई, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी सम लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस की। हीट एनर्जी जो जनरेट होगी जब करंट फ्लो करेगी। ऐसा तो है नहीं हमने इंडक्टर में लिख दिया सेल्फ रेजिस्टेंस जीरो तो जीरो ही होगी, सम रेजिस्टेंस विल बी देयर ऑफ वायर्स। तो जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी वो अनडैम्प्ड होंगी या डैम्प्ड होंगी? डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो हमारे पास डीसी को जब एसी में चेंज किया तो हमारे पास ऑसिलेशंस ऐसी आ जाएंगी और ये अल्टीमेटली खत्म हो जाएंगे। तो हम एक सेमीकंडक्टिंग डिवाइस यूज कर लेते हैं एलसी ऑसिलेटर के साथ जो फीडबैक देती है। फीडबैक का सिस्टम समझना है तो आप ऐसे समझो कि लाइक अगर स्विंग पे एक स्टूडेंट बैठा है और आपने उसको एक बार धक्का मारा और छोड़ दिया, तो उसकी ऑसिलेशंस डैम्प्ड होती हैं या अनडैम्प्ड? डैम्प्ड। वो अल्टीमेटली रुक जाएगी स्विंग। अगर आप चाहते हो कि अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस हो तो हम क्या करते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कम ना हो। जब भी वो पीछे आएगा आप उसको धक्का मारोगे। धक्का कब मारोगे? जब वो पीछे आ रहा था या जब आगे जाने लगा था? आगे जाने लगा था। बिकॉज इन फेज देनी है एनर्जी, उसके पास आगे की डायरेक्शन में वेलोसिटी, आप भी उसी डायरेक्शन में एनर्जी दोगे तभी फायदा होगा। तो आप उसको बोलते हो कि आप एक फीडबैक दे रहे हो, जितनी एनर्जी उसने लूज की उतनी एनर्जी आपने प्रोवाइड कर दी ताकि उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कांस्टेंट रह जाए। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी हम यही करते हैं कि हम इस एलसी ऑसिलेटर के साथ एक और कॉइल को म्यूचुअली कपल करते हैं। म्यूचुअली कपल मतलब एक और कॉइल लगाते हैं जिनमें दोनों में म्यूचुअल इंडक्शन है, इन सच अ वे कि जो दूसरे कॉइल में एनर्जी आ रही है साथ में वो फर्स्ट को कंपेंसेट करे, मतलब उसको एनर्जी दे। वो कैसे करेंगे वो सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, बट वी गिव अ फीडबैक कि जितनी एनर्जी सर्किट में कम हो रही है इसको म्यूचुअल इंडक्शन से दूसरे कॉइल से मिल रही है ताकि इसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहे। और फिजिक्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज ऑसिलेटर हमें कई जगह पे चाहिए होता है। आपके घर में जो डिवाइसेस है उनमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो डीसी पे चलते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो एसी पे चलते हैं। तो हमने अगर एसी सप्लाई दे दी किसी डिवाइस को और वो डीसी पे चलता है तो हम बीच में रेक्टिफायर लगा देते हैं ताकि हमने तो एसी सप्लाई दी है तो उस कंपोनेंट को डीसी मिले। सिमिलरली आपके घर में कुछ डिवाइसेस हैं जो डीसी पे चलती है। डीसी पे मतलब जिसमें भी आप सेल वेल डाल के चलाते हो, डीसी ऑपरेटेड डिवाइसेस। तो उस डिवाइस के अंदर ऐसे कंपोनेंट भी हैं जो डीसी को ब्लॉक करते हैं, जैसे
कैपेसिटर कैपेसिटर, तो कैपेसिटर तो डीसी को ब्लॉक कर देगा, तो कैपेसिटर में जाने से पहले उसको एसी में चेंज करना पड़ेगा, तो यू नीड एन ऑसिलेटर। तो इसलिए ऑसिलेटर और रेक्टिफायर सर्किट्स में लगे रहते हैं सो दैट यू कैन इंटरचेंज। तो इस टॉपिक को करेंगे कल, सिर्फ ब्रीफ में बताया, पूरी क्लास लगेगी ऑलमोस्ट इसमें, और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपटीशन में तो सिर्फ फॉर्मूला ही चाहिए, लास्ट में हम फॉर्मूला ड्राइव कर देंगे, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन, बिकॉज 5 मार्क्स में आता है कई बारी। सो नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको, एलसी ऑसिलेटर को। आज वाला पढ़ लेना, वो सेम रिपीट ही है जो कल किया था, कुछ नया नहीं है उसमें।